اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تینوں آسمانی کتابیں حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کی پیدائش کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ توراہ میں حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کو ایک ایسے انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جسے پیدائش سے پہلے ہی ایک عظیم عہد کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا، ایک ایسا شخص جس کے ذریعے ایک خاص وعدہ قائم ہونا تھا۔ بائبل حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کو ایمان والوں کا باپ قرار دیتی ہے، وہ انسان جسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا گیا اور جس کی نسل سے دنیا کو ہدایت ملنی تھی۔ قرآن حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کو ایک ایسے معاہد کے طور پر بیان کرتا ہے جو فطری طور پر باطل سے بیزار تھا، جس کا دل شروع ہی سے ایک اللہ کی طرف مائل تھا، بغیر کسی انسان کے سکھائے۔ تینوں کتابیں ایک بات پر متفق ہیں۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم ایک عام بچے کے طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش خود ایک خطرہ تھی۔ اگر آپ تاریخ، ایمان اور طاقت کے ٹکراؤ پر مبنی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیں، تو بنی آدم کے اس سفر کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم جس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ بتوں سے بھری ہوئی دنیا تھی۔ یہ کوئی پسماندہ یا کمزور معاشرہ نہیں تھا، یہ ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ شہر منظم تھے، عمارتیں بلند تھیں، علم، نجوم، حساب اور حکمرانی اپنے عروج پر تھے۔ مگر روحانی طور پر یہ دنیا کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ہر خوف کو ایک بت بنا دیا گیا تھا، ہر خواہش کو معبود کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہاں بت صرف مذہبی علامت نہیں تھے، یہ پورا نظام تھے۔ یہ غلامی کو جائز ٹھہراتے تھے، یہ بادشاہت کو مقدس بناتے تھے، یہ سوچنے والوں کو کچلنے کا جواز فراہم کرتے تھے۔ اس نظام کے مرکز میں ایک طاقتور بادشاہ تھا، جسے اسلامی روایات میں نمرود کہا جاتا ہے۔ وہ صرف حکومت نہیں کرتا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ وہ زندگی اور موت کا مالک بننے کا دعویدار تھا۔ اس کی طاقت تلوار سے زیادہ خوف پر قائم تھی، اور اس خوف کو برقرار رکھنے کے لیے پجاریوں اور نجومیوں کا ایک مضبوط طبقہ موجود تھا۔ پھر ایک پیش گوئی نے اس نظام کو ہلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ درباری نجومیوں اور پجاریوں نے ستاروں میں ایک ایسا نشان دیکھا جس نے انہیں لرزا دیا۔ ان کے مطابق ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا جو بتوں کو توڑ دے گا، جھوٹی خدائی کو چیلنج کرے گا اور پورے مذہبی نظام کو زمین بوس کر دے گا۔ یہ بات افسانہ نہیں سمجھی گئی، کیونکہ وہ لوگ آسمان کو پڑھتے تھے، وہ طاقت کو ستاروں سے جوڑتے تھے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اگر اس بچے کو زندہ رہنے دیا گیا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ طاقت نے وہی فیصلہ کیا جو طاقت ہمیشہ کرتی ہے، اس نے مستقبل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکم جاری ہوا کہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حاملہ عورتیں نگرانی میں آ گئیں، گھروں کی تلاشی ہونے لگی۔ خوف نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زندہ رہنا ہی بغاوت بن گیا تھا۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کے والد، جنہیں قرآن میں آزر کہا گیا ہے، اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ بت تراشنے کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ وہ معبود بناتے تھے جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ بتوں کو توڑنے والا، بت بنانے والے کے گھر پیدا ہوا۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کی والدہ نے اپنی حمل کو چھپایا۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے شہر سے دور ایک غار میں پناہ لی۔ کچھ کے مطابق وہ خاموشی سے ایک الگ جگہ پر رہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ پیدائش خوف کے سائے میں ہوئی۔ کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی گواہ نہیں تھا، مگر آسمان اس لمحے سے غافل نہیں تھا۔
कुरान इस पैदाइश को किसी मुजिज़ाती मंजर के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि उसे कुदरती मगर मकसद से भरपूर वाक़या के तौर पर पेश करता है। क्योंकि अल्लाह के बड़े मंसूबे अक्सर खामोशी में शुरू होते हैं। इनक़िलाब शोर से नहीं, बका से जन्म लेता है। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम बचपन ही से मुख्तलिफ थे। वो ना तो जिस्मानी ताकत में नुमायाँ थे, ना दौलत में, ना किसी मनसब में, मगर उनके अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो सवाल करते थे। जहाँ दूसरे बच्चे बुतों को खेल समझते थे, वहाँ अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम इन्हीं गौर से देखते थे। जहाँ लोग वरासत में मिले अक़ीदे को दोहराते थे, वहाँ वो इस पर सोचते थे। उनका दिल तज़ाद को कबूल नहीं करता था। ये बगावत किसी इंसान ने नहीं सिखाई थी, ये फितरत की आवाज़ थी, और फितरत की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उसी वजह से उनकी खामोशी भी निज़ाम के लिए ख़तरा बन गई। जैसे जैसे हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम बड़े होते गए, उनके इर्द गिर्द की दुनिया जमूद का शिकार रही। लोग सोचते नहीं थे, सिर्फ मानते थे। लोग सवाल नहीं करते थे, सिर्फ दोहराते थे। अक़ीदा वरासत बन चुका था, और वरासत एक कैद। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम इस कैद में फिट नहीं बैठते थे। वो खामोशी से देखते थे, गुस्से के साथ नहीं, बगावत के शोर के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी संजीदगी के साथ जो खुद एक सवाल बन जाती थी। जहाँ लोग पत्थर के बुतों में ताकत देखते थे, वहाँ अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम इंसान की कमज़ोरी देखते थे। जहाँ लोग माबूद देखते थे, वहाँ वो हाथों से तराशे गए पत्थर देखते थे। कुरान हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की इस ज़हनी कैफियत को निहायत खूबसूरती से बयान करता है। सितारे, चंद और सूरज का जिक्र दरअसल इबादत नहीं बल्कि दलील थी। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो चीज़ ग़ुरूब हो जाए, जो बदल जाए, जो गायब हो जाए, वो खुदा नहीं हो सकती। ये उलझन नहीं थी, ये एहतजाज था। एक ऐसा एहतजाज जो बग़ैर नारे के था, मगर असर में ज़लज़ला। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम की पहली टक्कर किसी बादशाह से नहीं हुई, किसी हुजूम से नहीं हुई, बल्कि अपने ही घर में हुई, अपने वालिद आज़र के साथ। ये मकालमा कुरान में बार बार आया है, और हर बार नरम लहजे के साथ। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने ना तो तज़हीक की, ना बदतमीज़ी की। इन्होंने सिर्फ सवाल किया, आप इसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है? आप क्यों इस चीज़ से डरते हैं जिसे आप खुद बनाते हैं? जवाब दलील में नहीं आया, जवाब धमकी में आया। ये तारीख़ का मुस्तकिल उसूल है। जब अक़ीदा खाली हो जाए तो ताकत बोलने लगती है। जब सच कमज़ोर पड़ जाए तो खौफ मजबूत हो जाता है। आज़र ने हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को खामोश रहने का हुक्म दिया। मुआशरे ने इन्हें अलग थलग करना शुरू किया। रिवायत ने इन्हें बाग़ी करार दे दिया, मगर सच पीछे नहीं हटता। फिर वो दिन आया जब हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम अकेले बुत खाने में खड़े थे। चारों तरफ पत्थर के चेहरे थे, खामोश माबूद, बेजान ताकत के दावे। और उसी लम्हे फैसला हो गया। ये गुस्से का अमल नहीं था, ये जज्बाती धमाका नहीं था, ये एक पैगाम था। एक एक करके बुत टूटते गए, पत्थर बिखरते गए, झूठी खुदाइयाँ ज़मीन पर गिरती गईं। आखिर में सिर्फ एक बुत बाकी रहा, सबसे बड़ा, और उसके गले में वो आला लटका दिया गया जिससे बाकी बुत तोड़े गए थे। ये तबाही नहीं थी, ये सवाल था। जब लोग वापस आए तो शहर में शोर मच गया। गुस्सा, खौफ और बेबसी एक साथ फूट पड़े। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों हुआ, सब ने पूछा कि किसने किया। नाम फौरन लिया गया, इब्राहीम। इन्हें घसीट कर लाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, जवाब मांगा गया।
हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने कहा, बड़े बुत से पूछ लो अगर वो बोल सकता है। इस लम्हे सच ने दिलों पर दस्तक दी। लोग जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते, वो जानते थे कि वो झूठ पर खड़े हैं, मगर सच मानने की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने इनकार का इंतखाब किया। इन्होंने बुतों को नहीं तोड़ा, इन्होंने हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को मुजरिम करार दिया। यहाँ बहस ख़त्म हुई और सज़ा शुरू हुई। फैसला हवा कि अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को ज़िंदा जला दिया जाए। ये सज़ा नहीं थी, ये अबरत थी। आग कई दिनों तक जुमा की गई, लकड़ियाँ इकट्ठी होती रहीं, शोले आसमान को छूने लगे। ये मंजर ताकत की नुमाइश था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को बांधा गया। कोई लश्कर नहीं था, कोई हिमायती नहीं था, सिर्फ एक नौजवान था और इसका यकीन। इस्लामी रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने मदद की इजाज़त मांगी, मगर हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने इनकार किया, क्योंकि उनका सहारा मखलूक नहीं था। फिर वो लम्हा आया जो तारीख़ का रुख बदल गया। जब हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को आग में डाला गया, तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो ठंडी और सलामती वाली हो जाए। आग जो सब कुछ जला देती है, फरमानबरदार हो गई। जो ताकत का हथियार था, वो हिफाजत बन गया। लोग साकत रह गए। बादशाह की नुमाइश नाकाम हो गई। खौफ का तवाज़ुन बदल गया। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम आग से बाहर निकल आए, जिंदा, महफूज, नाकाबिल तरदीद। ये सिर्फ एक मूजिज़ा नहीं था, ये ऐलान था। ताकत तकदीर पर काबू नहीं रखती, सच रखता है, लेकिन सच को बर्दाश्त नहीं किया गया। जब कत्ल मुमकिन ना रहा तो जलावतनी का फैसला हुआ। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को निकाल दिया गया। और यही वो मोड़ था जहाँ मुखालफत एक वरासत में बदलने वाली थी। जब हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम आग से सलामत बाहर निकले तो दुनिया ने तालियां नहीं बजाईं, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, कोई इज्तिमाई तौबा नहीं हुई, कोई निज़ाम नहीं बदला। ताकतवर निज़ाम अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। शहर में खामोशी छा गई, मगर ये सुकून नहीं था बल्कि खौफ से भरी खामोशी थी। बुत अभी भी कुछ जगहों पर मौजूद थे, बादशाह अभी भी तख्त पर बैठा था, मगर एक चीज़ हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ताकत का पर्दा चाक हो चुका था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम अब सिर्फ सवाल करने वाला नौजवान नहीं रहे थे, वो इस बात का ज़िंदा सबूत बन चुके थे कि असल इख्तियार ना पत्थर में है, ना आग में, ना बादशाह में। और यही बात इन्हें जिंदा रखकर भी ख़तरा बना रही थी। कुरान बताता है कि इसके बाद हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने हिजरत की। ये भागना नहीं था, ये हुक्म की तमील थी। इन्होंने अपना शहर, अपना ख़ानदान, अपने वालिद और अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया। बाइबल इस लम्हे को एक वाज़ेह पुकार के तौर पर बयान करती है। अपना वतन, अपने लोग और अपने बाप का घर छोड़ दो। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये वाबस्तगी तोड़ना था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम किसी आरामदह मुस्तक़बिल की तरफ नहीं जा रहे थे। वो एक नामालूम रास्ते पर चल पड़े, बग़ैर नक्शे के, बग़ैर यकीन के कि आगे किया होगा, मगर पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह साथ है। यहाँ से उनकी कहानी का रुख बदल जाता है। अब वो बुत नहीं तोड़ रहे थे, अब वो ईमान की बुनियाद रख रहे थे। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम जहाँ जहाँ गए, वहाँ मुख्तलिफ माबूद थे, मुख्तलिफ बादशाह थे, मगर मसला एक ही था। ताकत को खुदा बना लिया गया था, मगर हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम ने मंदिर नहीं बनाए। इन्होंने सोच पैदा की। कुरान इन्हें एक उम्मत करार देता है। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है। एक इंसान जिसने एक अक़ीदा के साथ ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आने वाली नस्लों का ईमान खड़ा हुआ।
यहूदियत हज़रत अलिफ सीन है अलिफ काफ से जुड़ी। ईसाईयत हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम के अहद से जुड़ी। इस्लाम हज़रत अलिफ सीन मीम अलिफ आइन ये लाम और हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम की तवहीद से जड़ा। 3 बड़े आलमी मज़ाहिब, एक बुनियाद, और ये बुनियाद एक ऐसे बच्चे से रखी गई जिसे पैदा होते ही कत्ल करने का हुक्म था। तौरा अहद पर जोर देती है, मगर अहद आजमाइश के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम को आजमाइशों से गुजारा गया ताकि ईमान मिसाल बन जाए। बाइबल एतिमाद पर जोर देती है, एक ऐसे इंसान पर जो ताख़ीर के बावजूद यकीन पर कायम रहा, अक़ल के ख़िलाफ़ भी मानता रहा। कुरान इताअत पर जोर देता है, मगर ऐसी इताअत जो शूर के साथ हो, अंधी तक़लीद के बग़ैर। ये तीनों ज़ाविये एक ही सच के मुख्तलिफ रुख हैं। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम का सबसे बड़ा ख़तरा ये नहीं था कि इन्होंने बुत तोड़े। उनका असल ख़तरा ये था कि इन्होंने वरासती अक़ीदे को तोड़ दिया। इनसे पहले खुदा ज़मीन से जड़ा हुआ था। हर कौम का अलग माबूद था। सच महदूद था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम ने सच को आज़ाद कर दिया। इन्होंने सिखाया कि खुदा किसी जगह का मुहताज नहीं, कि ईमान खून में नहीं, शूर में होता है, कि अक़ीदा वरासत नहीं, इंतिखाब है, और जहाँ इंतिखाब आ जाए वहाँ ग़ुलामी नहीं चल सकती। उसी लिए हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम ने कभी कोई सल्तनत कायम नहीं की, क्योंकि उनका काम तख्त संभालना नहीं था, उनका काम दिल बदलना था। कुरान में हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम की दुआ महफूज है। इन्होंने ताकत नहीं मांगी, इन्होंने ये दुआ की कि उनकी नस्ल हिदायत पर कायम रहे, कि आने वाले लोग सच को याद रखें। और तारीफ़ ने इस दुआ को कबूल किया। लेकिन ये सब आसान नहीं था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम ने अपनी ज़िंदगी में वादों की तकमील कम देखी। औलाद देर से मिली, कुर्बानी बार बार मांगी गई, जुदाई उनका मुक़द्दर बनी, क्योंकि ईमान का इनाम फ़ौरन नहीं मिलता, वो हमेशा के लिए मिलता है। तारीफ़ का सबसे बड़ा तनज़ ये है कि जिस बादशाह ने हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम को जलाना चाहा, इसका नाम मिट्टी में दब गया। जिन बुतों को वो पूजते थे, वो अजाइब घरों में बंद हो गए, वो सल्तनतें मिट गईं, मगर हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम का नाम आज भी ज़िंदा है। नमाज़ों में, दुआओं में, शनाख्त में, ये ताकत और सच का फ़र्क है। ताकत चाहती है कि इसे याद रखा जाए, सच खुद याद रखा जाता है। उसी लिए हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम की पैदाइश एक ख़तरा थी। ना तलवार की वजह से, ना लश्कर की वजह से, बल्कि यकीन की वजह से। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आईना है। हर दूर के अपने बुत होते हैं, हर मुआशरे के अपने झूठ होते हैं। हर नस्ल को फैसला करना होता है कि वो वरासत में मिले अक़ीदे पर चलेगी या सच तलाश करेगी। और कहीं ना कहीं खामोशी में सच हर दूर में दोबारा जन्म लेता है। अगर ये दास्तान आपके दिल को लगी, अगर उसने सोच को हिलाया, तो बनी आदम के साथ जुड़े रहे। इन कहानियों को आगे पहुंचाइए ताकि ईमान रिवायत ना रहे बल्कि शूर बने, क्योंकि आग आज भी मौजूद है। सवाल सिर्फ ये है, कौन है जो इसमें से सलामत गुजरेगा।